बहुत समय पहले ईसोप नाम के एक बुद्धिमान आदमी कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां जिंदगी के बारे में महत्वपूर्ण बातें सिखाती थीं। ईसोप की कहानियों में जानवर और सरल किस्से होते थे। ये कहानियां हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करती हैं। ईसोप की एक प्रसिद्ध कहानी है द गूस दैट लेड द गोल्डन एग्स। ये कहानी एक किसान की है जिसके पास एक बहुत ही खास हंस थी। हर दिन हंस एक चमकदार सुनहरा अंडा देती थी। किसान बहुत खुश था क्योंकि अंडे ने उसे अमीर बना दिया था। किसान एक सीधा साधा आदमी था जो अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था। वह अपने जानवरों, खासकर हंस की अच्छी देखभाल करता था। हंस सफेद पंखों वाला एक सुंदर प्राणी था। वह खेत में अपने खास अंडे देकर खुश लगती थी। किसान अमीर होता गया लेकिन लालची भी होता गया। उसने सोचा, अगर हंस के अंदर इतना सोना है तो इंतजार क्यों? वह अधीर हो गया और एक ही बार में सारा सोना चाहता था। किसान ने सारे अंडे पाने के लिए हंस को मारने का फैसला किया। किसान ने हंस को मार डाला लेकिन अंदर कोई सोना नहीं मिला। उसने वही चीज नष्ट कर दी थी जिसने उसे अमीर बनाया था। उस दिन किसान ने एक कड़ा सबक सीखा। उसके लालच ने उसकी कीमती हंस को उससे छीन लिया था। Section 6. Greed in our world. Greed is a powerful force that shapes much of our modern society. It drives people to accumulate more wealth, more power, and more resources, often at the expense of others. This insatiable desire for more can be seen in various aspects of our daily lives. आज हम अपनी दुनिया में इस कहानी का सबक देखते हैं। In the hustle and bustle of our cities, we see people striving to get ahead, to earn more, and to possess more. This relentless pursuit can lead to a competitive environment where the well-being of others is often overlooked. कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, भले ही इससे दूसरों को तकलीफ हो। The desire to hoard wealth and resources can create a disparity between the rich and the poor. Shelves in grocery stores being emptied during crises are a stark reminder of how greed can lead to shortages and suffering for many. We प्रकृति से बहुत ज्यादा ले सकते हैं। This greed extends beyond human interactions and into our relationship with nature. Deforestation and overfishing are clear examples of how the relentless pursuit of profit can deplete natural resources, causing long-term damage to our environment. या लोगों के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। In the workplace, greed can manifest as exploitation and unfair treatment of employees. The pressure to maximize profits often leads to stressful work environments and can result in protests and demands for better conditions. यह लालच हमारे ग्रह और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। The consequences of greed are far-reaching, affecting not just individuals but the entire planet. Pollution, climate change, and environmental degradation are all symptoms of a world driven by the desire for more. It is crucial for us to recognize the impact of our actions and strive for a more balanced and sustainable way of living. लेकिन उम्मीद की किरणें भी हैं। There are movements and initiatives around the world that aim to counteract the effects of greed. Community gardens, sharing economies, and the adoption of renewable energy sources are all steps towards a more equitable and sustainable future. हम सभी को मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए। By working together and making conscious choices, we can create a world where resources are shared more fairly, and the environment is protected for future generations. It is up to each of us to make a difference and to choose compassion over greed. आइए हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं। Let us all take steps towards this goal, fostering a sense of community and responsibility. Together we can build a world where greed does not dictate our actions and where the well-being of all is prioritized. Section 7. Learning from the Goose. In this chapter we delve into the timeless tale of the goose that laid golden eggs. This story has been passed down through generations, teaching us valuable life lessons that remain relevant even today. हंस की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट रहे। यह कहानी एक साधारण किसान की है जिसे एक दिन अपने खेत में एक अद्भुत हंस मिला। यह हंस हर दिन एक सुनहरा अंडा देती थी जिससे किसान बहुत खुश था। यह हमें दिखाता है कि लालची होने से हम सब कुछ खो सकते हैं। किसान की खुशी जल्द ही लालच में बदल गई। उसने सोचा कि अगर हंस के अंदर इतने सारे सुनहरे अंडे हैं
तो क्यों न एक ही बार में सब निकाल लिए जाएं। उसने हंस को मार डाला, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। इसके बजाय हमें अपने जीवन में अच्छी चीजों के लिए आभारी होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने पास जो कुछ भी है उसकी कद्र करनी चाहिए। हमें उन छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए जो हमारे जीवन में है। हमें इन चीजों की देखभाल करनी चाहिए, न कि इन्हें नष्ट करना चाहिए। जैसे किसान को हंस की देखभाल करनी चाहिए थी, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में उन चीजों की देखभाल करनी चाहिए जो हमें खुशी देती हैं। हमें अपने परिवार, दोस्तों और प्रकृति के प्रति आभारी होना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। इस तरह हम एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं। सेक्शन 8, अ टाइमलेस टेल, इसॉप की कहानी हम सभी के लिए एक ऐसी याद दिलाती है जो हमेशा सच रहेगी। यह हमें लालच के खतरों और धैर्य के महत्व के बारे में सिखाती है। कहानी सरल है, लेकिन इसका संदेश शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। हमें इस सबक को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। Section 9, What we can learn. In this section, we delve into the valuable lessons that stories and experiences can teach us. These lessons are timeless and universal, offering wisdom that transcends cultures and generations. किसान की तरह हम लालची बनना चुन सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि लालच हमें अंततः नुकसान ही पहुंचाता है। जैसे किसान ने सोने के अंडे देने वाली हंस को मार दिया, वैसे ही हम भी अपने लालच के कारण अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीजों को खो सकते हैं, या हम संतुष्ट रहना चुन सकते हैं। संतोष एक ऐसी भावना है जो हमें आंतरिक शांति और खुशी देती है। जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करते हैं, तो हम जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद ले सकते हैं। हम उसकी गलती से सीख सकते हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें सुधारना हमारे हाथ में है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और हमारे पास जो है उसकी सराहना कर सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए पल, प्रकृति की सुंदरता और हमारे जीवन में छोटी छोटी खुशियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। आइए हंस को याद करें। हंस हमें यह सिखाती है कि धैर्य और संतोष से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सोने के अंडे देने वाली हंस एक प्रतीक है कि धैर्य और मेहनत से हमें सफलता मिलती है, और आभारी और दयालु बनना चुने। आभार और दया हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके प्रति आभारी होते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशी लाते हैं। इस तरह हम सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम एक मजबूत और खुशहाल समुदाय का निर्माण करते हैं। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर